عید الاضحیٰ کا آج دوسرا دن بھی بھرپور منانے کی تیاریاں. آج یوم سسرال بھی بھرپور جوش و جذبے سے منایا جائے گا. کل کے میزبان ہوں گے آج کے مہمان. بچے بھی اپنے نانوں گھر جانے کے لیے پرجوش. کوئی قربانی تو کوئی رشتہ داروں سے ملنے کی تیاریاں کرنے میں مصروف. چھوٹی دنیا نے بھی موج مستی کے سپاٹ فکس کر لیے. عزیز رشتہ داروں دوست احباب کے ہاں ہوگا خوب ہلا گلا. عید کے پہلے روز قربانی کے بعد شام کو بھرپور دعوتیں اڑائیں گے. ذائقے مسکراہٹیں اور اپنوں کا ساتھ گوشت کے مختلف پکوانوں کی خوشبو اور قہقہوں کی گونج نے خوشیوں کا سما باندھ دیا. خواتین نے گھروں میں تیار کردہ مزیدار کھانے محلے داروں عزیزوں کے ساتھ شیئر کیے. شہریوں نے عید کی شام شاندار انداز میں گزاری. خاندانی ملاقاتیں. کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں کھابے کے پوائنٹس پر رش. بعد میں بڑوں اور بچوں نے آئس کریم پر ہاتھ صاف کیا. ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا عید کی اصل خوشیوں کا دوبالا کیا گیا. وزیراعظم کے عالمی رہنماؤں سے رابطے عید کی مبارکباد دی. امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ٹیلی فونک گفتگو میں پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے قطر کے متحرک سفارتکاری پر شکریہ ادا کیا. دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کو دہرایا. وزیراعظم نے ملیشین ہم منصب انور ابراہیم سے بھی رابطہ کیا اور ملیشین عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزیراعظم نے کہا بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. وزیراعظم شہباز شریف نے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف اور تاجک صدر امام علی رحمان سے گفتگو میں تعاون بڑھانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا. وزیراعظم نے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کو ٹیلی فون میں حالیہ پاک بھارت بحران میں مصر کی تعمیری کردار کو سراہا. شہباز شریف نے کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور انہیں عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی. دونوں رہنماؤں نے امت مسلمہ کی خوشحالی اور امن کے لیے دعا کی. شاہ اردن کو ٹیلی فون میں وزیراعظم نے عید کی مبارکباد دی. حالیہ پاک بھارت کشیدگی پر تبادلہ خیال دورہ پاکستان کی بھی دعوت دی. وزیراعظم اور بحرین کے بادشاہ شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ. شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان رابطہ. ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد نیک خواہشات کا اظہار. وزیراعظم نے صدر ازبکستان کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی. دو طرفہ تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار. کسی بھی جارحیت کو شکست دینے کے لیے مکمل تیار ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا LOC پر جوانوں سے خطاب. کہا خاندانوں سے دور فرنٹ لائن پر عید منانا مادر وطن کے دفاع کے قومی مقصد کی تکمیل ہے جو سال بھر جاری رہتا ہے. آپ نے بے گناہ پاکستانی شہریوں بشمول بچوں، خواتین اور بزرگوں کے جانی نقصان کا بھرپور بدلہ لیا. آپ نے بے گناہ پاکستانی شہریوں کے جانی نقصان کا بھرپور بدلہ لیا. کشمیری عوام کی بھارتی قبضے کے خلاف جائز اور بہادر جدوجہد کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا. مقبوضہ جموں کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. فیلڈ مارشل نے لائن آف کنٹرول پر اگلے مورچوں کا دورہ کیا اور سپاہیوں کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی. پاکستان کے پائیدار امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی. شہداء کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی. آرمی چیف نے جوانوں کے بلند حوصلے، غیر معمولی آپریشنل تیاری اور بھارتی سیز فائر مؤثر جواب بندی کے حوالے سے سراہا. مسلح افواج کی جنگی تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اعادہ. بھارت کی جانب سے پانی بند کرنا ایٹمی آبی جنگ کی بنیاد رکھنے کے مترادف ہے. بلاول بھٹو کا مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے خطاب کے دوران دو ٹوک موقف. کہا ہم پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ پانی کی ترسیل روکنا ہمارے لیے اعلان جنگ کے برابر ہوگا. ہم یہ بات کسی اشتعال یا جذبات میں نہیں کہہ رہے، نہ ہی اس بات میں کوئی خوشی پوشیدہ ہے. واشنگٹن میں پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ انڈیا پہلگام حملے کی غیر جانبدار تحقیقات اور مذاکرات کی پیشکش سے بھاگ رہا ہے. پاکستان امن کا خواہاں ہے. بھارت سے تمام معاملات پر بات چیت کے لیے تیار. بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے. بھارتی فوج کا حاضر سروس افسر کلبھوشن یادو بلوچستان سے گرفتار ہوا. صدر ٹرمپ نے پاک بھارت کشیدگی ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا. بھارت کے 20 طیارے ہمارے ہدف میں تھے. پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف 6 گرائے. مودی سرکار پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے. 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی روکنے کا اقدام کھلی جارحیت ہے. بھارت اپنے عوام سمیت عالمی برادری سے جھوٹ بول رہا ہے. مودی کو طیارے گرنے کا اعتراف کرنے میں 1 ماہ لگا. پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارتی میڈیا مسلسل جھوٹ بولتا رہا. دہشت گردی کا کسی مذہب یا ملک سے کوئی تعلق نہیں. بھارتی وزیراعظم مسلسل دھمکی آمیز رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں. کوئی بھی ملک یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا. صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں پاکستان میں مختلف ممالک کے سفراء اور سفارتکاروں کی ملاقاتیں. صدر مملکت اور دوست ممالک کے سفراء کی
माबैन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद का तबादला। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट में भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया, नेक ख्वाहिशात का इजहार, सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ मुल्की उमूर पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC खैबर पख्तूनख्वा हेडक्वार्टर्स वाना का दौरा। मगरबी सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। वज़ीर दाखिला ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। शहीद कबायली अवाम, सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस समेत तमाम शहदा को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। जुरत, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सराहते हुए कहा कि आपकी कुर्बानियाँ और साबित कदमी वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत, यही जज्बा पाकिस्तान की असल ताकत है। मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी के खिलाफ कबायली अवाम के ताउन और कुर्बानियों को भी सराहा। जज्बे को कौम का कीमती असासा करार दिया। अपने हिस्से का काम जो है वो बेहतरीन से भी बेहतर जो है वो कर दिया है। पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत जो है वो यकजहती का मुजाहरा करती है, तो फिर हिंदुस्तान को जो है वो इस किस्म की कार्रवाइयों में जो है वो कामयाबी नहीं हो सकती। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की PTI को कौमी इशूज़ पर मुज़ाकरात की दावत। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI इस वक्त किसी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। अगर इनके जहन में कोई गलत फहमी है तो इसे दूर कर लें, क्योंकि कौमी मफाद सियासी ज़िद से कहीं बालातर है। पाकिस्तान को आगे बढ़ने से अब कोई रोक नहीं सकता। वज़ीर आज़म ने मसाइल के हल के लिए मिल बैठने की ऑफ़र की है। वक्त का तकाजा है कि तमाम सियासी क़ुव्वतें मिलकर मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए किरदार अदा करें। भारत ने पाकिस्तान को कमज़ोर समझकर बिला जवाज़ हमले की कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि भारत आलमी सतह पर ज़लील और रुस्वा हो गया। अब मुंह छुपाता फिर रहा है। पानी की कॉल पर एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाएगी। हमारी जद्दोजहद रंग ले आएगी। जल्द बानी PTI समेत पार्टी के तमाम क़यादत हमारे दरमियान होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्पीकर ने मेरे खिलाफ बगैर सबूतों की फरमाइशी रेफरेंस दायर किया। लोगों ने बानी PTI की मोहब्बत में वोट दिए। मुझ पर 200 FIRs हैं। पीका एक्ट की भी FIR दे दें। ये समझते हैं कि मुझे दबा सकते हैं। मैं बानी का सिपाही हूँ। हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। PTI की कोई तहरीक कामयाब होती नजर नहीं आ रही। इंतशार के बिल पर कोई चीज़ नहीं मनवाई जा सकती। बानी PTI अपनी ही रियासत के खिलाफ बयानी को तब्दील करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पूरी दुनिया में झगड़े और बंदूक के जोर पर कोई बात नहीं मनवा सकता। हम आपस में दुश्मन नहीं, एक कौम हैं। सिंध के हर हिस्से के लिए स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। MQM सियासत के साथ अगर शोला बयानी नहीं करेगी तो लोग कैसे पूछेंगे। ताकतवर हल्के अपनी अना को छोड़कर मुल्क की खातिर बानी PTI को बाइज़्ज़त रिहा करें। बानी PTI सियासी और माशी इस्तेहकाम की ज़मानत हैं। इनकी रिहाई नागुज़ीर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI पाकिस्तानी अवाम की खातिर कैदुबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। बानी को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को भी नाकर्दा जुर्म में कैद किया गया। बानी PTI कारकुनान हमारे ख़ानदान का हिस्सा हैं। इस मौका पर आप उन शहदा को और पाक जवान फौज के जो जवान हैं जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने जमा मर्दी के साथ मुकाबला किया है, और वो लोग जो गरीब हैं, इस्लामी उम्मा के लोगों से अपील करूँगा कि उनकी वो मदद करें और उनका ख्याल करें, गरीबों का ख्याल करें। सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सियासी इस्तेहकाम से ही माशी इस्तेहकाम आएगा। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि बजट में आवाम को रिलीफ देना चाहिए। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान के बयानी को तस्लीम किया जा रहा है। ईद उल अज़हा पर शहदा को याद रखना चाहिए। गरीबों का भी ख्याल रखा जाए। महंगाई के बाइस अवाम पर बोझ बढ़ गया है। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं वफाकी बजट 10 जून को आएगा। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। विफाक से हतमी आदाद शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे कि बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाएं। विफाक भी तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ देगा। हेस्को, सेप्को और के इलेक्ट्रिक तीनों इदारे नाकाम हो चुके, खुसूसन सेप्को नाकाम हो चुका। सिंध में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। विफाक के साथ हमारी बातचीत जारी है। तीनों इदारों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पीने के साफ पानी और सोलर एनर्जी पर खास तवज्जो दे रहे हैं। सिंध में सैलाब मुतासरीन बनने वाले 21 लाख घरों में से 10 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं।
पंजाब भर में सफाई ऑपरेशन सुथरा पंजाब के 1,30,000 वर्कर सफाई ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि 30 अरब रुपए मालियत की मशीनरी सफाई मुहिम में इस्तेमाल हो रही है। तमाम अजला की निगरानी कंट्रोल रूम्स और सेफ सिटी कैमरों से की जा रही है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं ईद उल अज़हा पर पंजाब में सफाई के बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सफाई मुहिम की खुद निगरानी कर रही हैं। 30 अरब मालियत की जदीद मशीनरी सफाई मुहिम में इस्तेमाल हो रही है। लाहौर में ड्रोन्स के जरिए सफाई इंतजामात का जायजा लिया गया। डैशबोर्ड के जरिए सब्जियों के निर्खों की मुसलसल मॉनिटरिंग हो रही है। आलू प्याज टमाटर की कीमतों में कमी आई है। बजट में आवाम को मजीद रिलीफ देंगे। कराची में आलाइशें उठाने की सुस्त रफ्तारी की हिदायत पर मेयर कराची का नोटिस। आलाइशों को जल्द ठिकाने लगाने की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि लाखों की तादाद में लोग कुर्बानी करते हैं। आलाइशों को ठिकाने लगाने का काम जारी है। टाउन और यूसी चेयरमैन से राबते में रहा। जहांगीर रोड के इलाके में कचरा और आलाइशें देखने को मिली। मुतल्लिका सफाई अमले और ठेकेदार को शो कॉज नोटिस जारी किया। पहले कई दिनों तक आलाइशें पड़ी रहती थीं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने खबरदार किया है कि मुल्की सियासी हालात ख़राब हो रहे हैं। भारत भी कोई शरारत कर सकता है। रावलपिंडी में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 14 केसेस में बानी पीटीआई के साथ हूँ। जेलों में कैद गरीब लोगों को रिहा किया जाए। जर्मनी के सफ़ीर ईद कुर्बान पर अपने गार्ड्स के लिए कुर्बानी का जानवर खरीद लाए। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, ईद कुर्बान पर सही जानवर की तलाश बच्चों का खेल नहीं। सबको खुशियों भरी बाबरकत और गोश्त से भरपूर ईद मुबारक हो। ईद की असल खुशी अपने बच्चों और अहल खाना के साथ वक्त गुजारने में है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, ईद जैसे खुशियों भरे गैर सियासी त्यौहार पर भी सियासी शख्सियात की मसरूफियात का अलग ही रंग होता है। ईद उल अज़हा हमें कुर्बानी, इसार और मोहब्बत का दर्ज देती है। ये दिन दिलों से नफ़रतें निकाल कर दूसरों के लिए एहतराम और मोहब्बत पैदा करने का पैगाम देता है। शदीद गर्मी के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बालाई पंजाब और KPK में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार। शहरी घरों से बाहर निकल आए। दर्जा हरारत में कमी से सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात ने मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की थी। सवात, चतराल, दीर, कोहिस्तान, मालाकंड, मानसेरा, एबटाबाद और अगजई, कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान में बारिश का इम्कान। कौमी क्रिकेटर्स की जानिब से कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। T20 कप्तान सलमान अली आगा और वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद मुबारक हो। फ़हीम अशरफ ने कहा कि सबको ईद मुबारक। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। शाहीन शाह आफरीदी की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। साइम अयूब ने कहा कि ईद खुशी का दिन है, इसको अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। मोहम्मद हारिस ने कहा कि जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, इस ईद पर उनका ख्याल रखें। साहिबजादा फरहान ने कहा कि ईद की खुशियाँ मुबारक हों, फैमिली के साथ इंजॉय करें। आमिर जमाल ने कहा कि ईद की खुशियां अपने अतराफ के लोगों तक भी पहुंचाएं। सुफियान मुकीम ने भी कौम को पूरी टीम की तरफ से ईद की मुबारकबाद दी। अस्सलाम वालेकुम, तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस ईद को एंजॉय करेंगे। मैं हूँ सिद्रा अमीन। आप सबको मेरी तरफ से बड़ी ईद बहुत मुबारक हो। इस ईद को अपने प्यारों के साथ खूब एंजॉय करें। ये खुशियों भरा दिन अपनी फैमिली और रिश्तेदारों के साथ गुजारिए। आपको यही मैसेज है, आस पड़ोस जरूरतमंद का ख्याल रखें और खुशियाँ बांटते रहें। इस ईद के मौका पर गोश्त के साथ साथ खुशियाँ भी बांटे, एक दूसरे का ख्याल रखें, खास तौर पर उन लोगों का जो पाकिस्तान वुमेन्स टीम की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर कौम को ईद की मुबारकबाद। खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर कौम के नाम पैगाम जारी किए।